I could have. Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of West Bengal Judicial Services 2019. So let's move on to the questions. Question number 1 is fill in the blank with the correct verb. अब देखिए वर्ब बताने हैं यहाँ पर ही डैश अ बैड कोड इज हैविंग हैव ही के बाद क्या आता है हैज सी इज द आंसर हैव तो आएगा नहीं नेक्स्ट इज टू fill in the blank with the idiomatically correct phrasal verb to find the meaning of a word you need to the dictionary अब यहाँ क्या करना है सर्च द डिक्शनरी सर्च के लिए क्या ऑप्शन आता है लुक इन लुक थ्रू लुक फॉर या लुक अप ये होता है लुक अप सर्च करना डी इज द आंसर लुक फॉर मतलब अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग ठीक है लुक थ्रू मतलब टू रीड समथिंग क्विकली रीड समथिंग ठीक है लुक इन मतलब टू मेक अ शॉर्ट विजिट या फिर कॉल ओके नेक्स्ट इज 3 fill in the blank with the correct pair of words the honorable member of dash gave us very wise dash क्या काउंसिल ऑन काउंसिल काउंसिल क्या होता है एडवाइस और काउंसिल एक क्या होती है कमेटी मीटिंग है ना तो डी इसमें आंसर रहेगा नेक्स्ट इज 4 fill in the blank with the appropriate verb his family dash united in supporting him his family are या should shall is his family is united in supporting him D is the answer next is 5 to hold a brief for someone means to support someone A is the answer next 6 choose the word with which best expresses the meaning tedious क्या होता है tedious मतलब क्या होता है बोरिंग मोनोटोनस और क्या होगा टायरसम A is the answer next 7 choose the option nearest to the meaning the word serendipitously serendipity क्या होता है that happens with by chance या by luck तो क्या होगा luckily D is the answer next is 8 choose the word which is synonymous with obligatory मतलब mandatory सब जानते हैं लॉ में तो आता ही है mandatory है ना A is the answer next is 9 choose the word which is opposite in the meaning to quell का मतलब क्या होता है क्वेल का मीनिंग क्या होता है टू एंड समथिंग मतलब ख़त्म कर देना और इसका ऑपोजिट क्या होगा फिर बढ़ावा देना मतलब इनसाइट सी इज द आंसर नेक्स्ट इज 10 चूज द ऑप्शन दैट कन्वर्ट्स द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन ग्रामेटिकली करेक्ट मैनर अभी दोनों ऑप्शन देखने हैं ही लाइक द बुक यू गेव इट टू हिम अब इसको मिक्स करके बनाना है यू गेव हिम द बुक एंड ही लाइक्ड इट या फिर यू गेव इट टू हिम एंड ही लाइक द बुक ही लाइक द बुक यू गेव it to him he liked the book you gave him D is the answer this is 11 choose the word that can correctly replace the both words in italics in the two given sentences the management did not find him suitable for the post या फिर the boy could not arrange the pieces of jigsaw puzzle properly could not arrange मतलब fill भी हो सकता है fit भी हो सकता है क्या होगा fit fill good take योगा फिट A is the answer next is 12 choose the word that best replaces the word in italics this business leaves very little elbow room for teachers elbow room मतलब थोड़ा सा भी स्पेस नहीं दिया मतलब फ्रीडम नहीं दिया फ्रीडम नॉलेज कॉन्सियसनेस एफिशिएंसी इट इज फ्रीडम A is the answer next is 13 identify the nature of the words in italics आई गो टू द सिनेमा नाउ एंड अगेन ये एडवर्ब फ्रेज है या फिर एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है प्लेस है रीजन है कंडीशन है ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है तो ए इसमें आंसर रहेगा नेक्स्ट इज 14 चूज द वर्ड दैट मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्लेसेस द वर्ड इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस
ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर द मनी कैन नॉट बी कॉल्ड अ पैट्रियट। तो क्या बोलेंगे उसको? मर्सिनरी। बी इज द आंसर। Next question number 15. Choose the most appropriate pair of words to fill the blank in the given sentence. Since I dash read every book, I only dash purchase the well known ones. Must ignore आएगा. I must read every book नहीं हो सकता. I should read every book no. I cannot read every book. I only buy दी वेल नोन वंस। अब देखिए परचेज यहाँ पर इन्होंने गलत लिख दिया, क्वेश्चन इसको फिर ये गलत कर दिया। कैन बी लिखा, यहाँ परचेज का ऑप्शन भी दे दिया। बाय और परचेज तो एक ही चीज़ है, तो यहाँ परचेज इनको यहाँ नहीं डालना चाहिए था। सी इसमें आंसर होना चाहिए, बट मैं कहूँगा थोड़ा क्वेश्चन जो गड़बड़ कर दिया इन्होंने यहाँ पर। नेक्स्ट इज 16. चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रेज टू फिल द ब्लैंक। द गवर्निंग बॉडी डैश दिस मंथ बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। द गवर्निंग बॉडी विल मीट, मे मीट, शैल मीट या फिर वुड मीट। अब देखिए यहाँ श्योर नहीं है तो मे मीट आना चाहिए यहाँ पे, मतलब पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है बट श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट 17. चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर्म टू फिल द ब्लैंक। आई डिड नॉट डैश व्हाट ही डिड। आई डिड नॉट कॉट ऑन टू, कॉट अप या कैच ऑन टू या कैच अप विद। तो इसमें क्या आएगा? कैच ऑन टू। सी इज द आंसर। कैच ऑन का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड और रियलाइज समथिंग। तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या आएगा? कैच ऑन। कैचअप का क्या होता है? वो बोलते हैं ना आई विल कैच अप विद यू। कैचअप का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मतलब पकड़ना, कि मतलब बहुत दिन हो गए मिले नहीं है ना, तो मीट या रीचिंग टू अ पर्सन, दैट इज कैचअप। Next is 18. Choose a suitable prefix for hero to describe someone who is not heroic. Anti-hero, anti-hero, non-hero या फिर unhero। ये anti-hero। B is the answer. Next is 19. Which of these suffixes cannot be added to the word care? अब देख, careful होता है yes, careless होता है yes, caring होता है yes, careness नहीं होता, तो D इसमें आंसर रहेगा। Next is 20. Choose the correct option after reading the following sentences. Sudden lightning heralded a violent storm। मतलब अचानक से स्टॉर्म में जो है लाइट निकल के आई। हेराल्डेड, हेराल्डेड अब इसका मतलब क्या होता है? समथिंग गोइंग टू हैपन सून, हेराल्ड। हेलोजन लैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर लाइटनिंग आवर स्ट्रीट्स, ये भी ठीक है। देखिए सेंटेंस जो है ये करेक्ट है। फिर हेलोजन लैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर लाइटनिंग आवर स्ट्रीट। लाइटनिंग का देखिए यहाँ पर ये लाइटन जो जलाने वाला लाइटन नहीं है, ये लाइटनिंग मतलब जो लूज करते हैं ना वेट, वेट लूज वाला, मतलब कम कर दिया बोझ उसका, तो वो यूज़ कर रखा है, तो इसलिए ये जो है ठीक नहीं है। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 21. चूज द करेक्ट टर्म फॉर 150th एनिवर्सरी। सेंटिनल क्या होता है? 100th एनिवर्सरी। फिर क्विंटेंशियल, क्विंटेंशियल क्या होता है? मोस्ट परफेक्ट। फिर टरसेंटिनल ये होता है 300 ईयर। फिर सेक्वेंसेंटियल ये होता है 150th। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 22. विच इज द वर्ब फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव क्वाइट। क्वाइट क्या रहेगा? क्वाइट, क्वाइट्यूड या क्विटन या फिर क्वाइटन या फिर क्वाइंटेंस। क्वाइटन, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 23. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वंस इन अ ब्लू मून? Something that happens only once a year, very rarely, occasionally. It is very rarely. C is the answer. Next 24. What is the meaning of the phrase birds of a feather? In the idiom, birds of a feather flock together. मतलब people who work in the same office या who study the same या who share the same opinion या फिर who commute in the same train. Who share same opinion. C is the answer.
नेक्स्ट 25, प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, शी सेड टू हर मदर। चेंज इन नरेशन, क्या रहेगा इसमें? शी विश्ड हर मदर, या फिर शी प्लीडेड, या फिर टोल्ड हर। वो प्लीड कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है नॉट टू बी एंग्री विद हर। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 26, चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय पिकिंग अप द करेक्ट ईडीएम फॉर्म। आई नो हिम, ही नोज मी, ही इज नोन टू मी, ही इज नोन बाय मी, ही इज नोन। He is known to me. B is the answer. Next 27. Change the narrative mode of the following sentence. Boys, would you please be quiet? The boys were asked if they wish to be quiet. Boys were requested to be quiet. Boys were told to be quiet. Boys were ordered to be quiet. Yeah, boys were requested to be quiet. B is the answer. Next 28. Which connecting word correctly converts the following simple sentences into a compound sentence? I was anxious to be on time, या I started early। मतलब I was anxious to be on time, so I started early। Yet तो आएगा, yet for I started, no, so ठीक रहेगा। C is the answer। Next is 29. What is the meaning of idiomatic phrase Hobson's choice? To be proffered a wide range of choices, या फिर to have no choice at all, या फिर to have the freedom to take or not to take the offer, freedom to choose later। क्या होता है? नो चॉइस एट ऑल। बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 30। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द सेंटेंस फ्रेगमेंट्स इनटू द करेक्ट सीक्वेंस। 1962 बुक साइलेंट स्प्रिंग, दैट द एनवायरनमेंट वाज, ऐसा आना चाहिए, दैट द एनवायरनमेंट वाज इन डेंजर was first recognized by American scientist in her book Silent Spring। तो QSRP, QSRP रहा। B is the answer। Next 31, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स एट, कौन सेशन में हुए थे ये स्प्लिट? सूरत सेशन में। कब हुआ था ये? 1907 में। दो कौन से थे? एक नरम दल, एक गरम दल, है ना, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। नरम थे कौन से? मॉडरेट्स। उनके कौन लीडर थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और वो कौन थे? पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। दूसरे कौन से थे? एक्सट्रीमिस्ट गरम दल। उसके लीडर कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, बोलते हैं ना लाल बाल पाल। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 32, द सेकंड सेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रोक डाउन ऑन द क्वेश्चन ऑफ Gandhi's fast on to death, if Gandhi not being treated on equal terms with the representatives of the king emperor, या फिर separate electorates for the minorities, या फिर government's unwillingness to release all political prisoners। Separate electorates for the minorities। C is the answer। Next 33, who was the viceroy of India when the Quit India movement started in 1942? वो थे Linlithgow। Linlithgow। A is the answer। Next 34, Gandhiji founded Satyagraha Sabha in 1919 to protest against the Sotlaw Rowlatt Act, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जलियांवाला मैसेकर। था Rowlatt Act। B is the answer। Next 35, which of the following tribes is found in Andhra Pradesh? कोल। कोल कहाँ पर है? झारखंड के ट्राइब हैं। कोलम है आंध्र प्रदेश के, तो बी इज द आंसर। खास, ये है हिमाचल प्रदेश में। अब इससे ना खासी जो है वो आसाम के, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। खास है हिमाचल में, और खासी जो है ना वो है आसाम में। खोंड्स, खोंड की छत्तीसगढ़ में भी है और एमपी में भी है। एमपी और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट 36, अलीगढ़ इज फेमस फॉर रिफाइनरी, शू मैन्युफैक्चरिंग, लॉक इंडस्ट्री, स्टील प्लांट। लॉक इंडस्ट्री, अलीगढ़ के ताले बोलते हैं ना, बड़ा फेमस है। नेक्स्ट 37, हाईएस्ट कॉफी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया इज, कौन सी है? वो है कर्नाटका। 70% इंडिया की कॉफी जो है कर्नाटका से आती है, तो ए इसमें आंसर रहेगा।
उसके बाद है केरला, फिर तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु थर्ड है आज के टाइम पे। उस टाइम पे भी कर्नाटका ही आंसर था। नेक्स्ट 38, द ओल्डेस्ट चर्च सेंट थॉमस चर्च इन इंडिया इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है? केरला में। बी इज द आंसर। और ये कहाँ पर है, मतलब स्टेट में? ये है कोडुंगलूर, कोडुंगलूर। नेक्स्ट 39, एनसीसी वाज सेटअप इन, कब सेटअप किया गया था एनसीसी को? नेशनल कैडेट कॉर्प्स, 1948। ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 40, द इंडियन रुपी साइन was adopted by the government of India on 15 July 2010. A is the answer. Next 41, which of the following aircrafts is the air-to-air refueler of the Indian Air Force? C-17 Globemaster या फिर Ilyushin 78 या फिर C-130J Hercules? ये Ilyushin 78 है। C is the answer. Next 42, nomadic elephant is a joint military exercise between India and China, Mongolia, Vietnam, Bhutan. मंगोलिया भी इज द आंसर। उस टाइम पर ये करंट अफेयर्स में होगा, तब आया होगा एग्जाम में। नेक्स्ट 43, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पैसेज ऑफ आईटी अमेंडमेंट एक्ट? कॉमन सर्विस सेंटर फॉर विलेजेस इन इंडिया, या फिर स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, या फिर नेशनल ई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी? ये था साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड था ये, तो डी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 44, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द कोड्स बिलो। अब देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा मैच ठीक है, करेक्ट मैच है, मतलब एक ही करेक्ट होगा। गोवा के लैंडलॉक्ड है, नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोंकणी बोलते हैं, नहीं बोलते। हरियाणा 2000 में नहीं है, 1966 में बना था। कर्नाटका में रायपुर है, नहीं है जी। बट अब देखिए, इसमें आंसर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1 का सी क्या करेक्ट बनता है? आज 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी स्टेट। क्या 2 का बी बनेगा? नहीं, लैंडलॉक्ड नहीं है ना। 3 का ए क्या बनेगा? कोंकणी बोलते हैं, नहीं जी। 4 का डी बनेगा, नहीं। तो ये 1 का सी इसमें, मतलब एक टाइप से ऑप्शन में थोड़ा सा करके बनाया गया है क्वेश्चन ये, तो ए इसमें आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट इज 45, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2017 इन फिल्म वाज अचीव्ड बाय, किसको दिया गया था? विनोद खन्ना को दिया गया था उस टाइम पर। डी वाज द आंसर। अभी 2024 का मिला है किसको? मिथुन चक्रवर्ती को, दादा साहब फाल्के अवार्ड, है ना। और 25 में किसको दिया? 2025 में मोहनलाल, जो कि मलयालम फिल्म, मतलब केरला की फिल्मों के हीरो हैं। नेक्स्ट 46, विच स्टेट इम्पोज 7-month बैन ऑन फिशिंग ऑन 1 November 2017? देखिए, करंट अफेयर्स में होगा उस टाइम पर। तो फिशिंग जो है ये उड़ीसा ने बैन कर दी थी। बी वाज द आंसर। नेक्स्ट 47, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कन्याश्री वाज एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन, या फिर स्टॉपिंग अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स, या फिर इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन टू रूरल गर्ल्स, या हेल्पिंग गर्ल्स रूरल अर्बन फाइनेंशियली? Stopping early marriage of girls. B is the answer. Next 48, what is the number of first time eligible women voters compared to the total first time voters at the coming Lok Sabha election? The total number is 8 crore 15 lakh. पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, क्वेश्चन ही ठीक नहीं है। तो आंसर किया है जब 4.35, मतलब कैसे अंदाज़ा लगाया वो समझ में ही नहीं आया किसी को। डेटा जो है सफिशिएंट नहीं था क्वेश्चन में। आई वुड से द क्वेश्चन इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज 49, जॉइंट एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल नेवी वाज हेल्ड फ्रॉम 5 to 16 December 2016 एट मुंबई एंड गोवा. इट इज नोन एज एक्यूवेरिन कोंकण कावेरी कनिघाट। ये थी कोंकण 16। बी वाज द आंसर। Next 50, which decade or decades are known as United Nations Decade for Sustainable Energy for All? 14 to 24, 11 to 20, 15 to 24? C is the answer. Next 51, arrange the following events for conservation of nature in terms of sequence, taking correct answer from the course below. और देखिए, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये हुई थी 1948 में। बाली समिट 2007, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सब जानते हैं ये।
2015 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन प्रोटेक्टिंग ओजोन लेयर 1987। तो क्या बन गया 1423। 1423 सी इज द आंसर। नेक्स्ट 52 लाइट्स वर स्विच्ड ऑफ, ये वर हो जाएगा अब तो। एट वर्ल्ड लैंडमार्क्स फ्रॉम बकिंगम पैलेस टू ग्रेट पिरामिड्स फ्रॉम आईफिल टावर टू एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऑन 31 मार्च 2019 टू ऑब्जर्व अर्थ आवर। हर साल करते हैं ये अर्थ आवर। ए इज़ दी आंसर। देखिए 46 माइनस 12 इंटू 3 एस क्या प्लस 18, फिर क्यू क्या है डिवाइडेड बाय 9। देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन कभी भी आया तो बोर्ड मास का जो रूल है वही अप्लाई होगा, है ना। तो पहले इसमें बी ओ तो है नहीं, तो डिवीजन करेंगे। सबसे पहले तो 2 आ गया, फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 36। तो 46 में 36 किया कितना बच गया 10, और यहाँ प्लस 2 12। ए इज़ द आंसर। Next 54, there are 4 bags T, S, V, W each having different weight. That bag T is lighter only than S, मतलब T जो है लाइटर है किससे S से। V is lighter than W, V जो है वो लाइटर है W से। W is lighter than T, मतलब T के बाद W फिर V आएगा। Which of the 4 bags is the lightest? Lightest कौन सा हुआ फिर V। D is the answer। अब डायरेक्शंस हैं 55 57। स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। वेरी वेल अर्न रिस्पेक्ट इज रिटन एज फॉर मी लागू। रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्नड। डी सी गू मी बी एम। अब देखिए कॉमन क्या है रिस्पेक्ट, यहाँ भी इन दोनों में कॉमन क्या है जी यू, मतलब रिस्पेक्ट का क्या आ गया जी यू। फिर वेल बींग इज एसेंशियल, वेल यहाँ पर कॉमन है और पहले वाले में कॉमन था, तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ फिर फॉर्मूला में से क्या कुछ है ला है कॉमन यहाँ पे, तो वेल का क्या हो गया ला। अब क्या है अर्न मनी बीइंग बेस्ट। अब देखिए वेल बीइंग है यहाँ पर और यहाँ बीइंग है 3 में और 4 में, इनमें से कॉमन क्या है बी एम एच आर एक्स एफ। जेड टी क्यू एस एम आई एक्स आई, ये कैसे हुआ, ये तो यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर रखी है। ये इसमें एक्स आई आना चाहिए, तब तक ये एक्स आई एक्स आई यहाँ कॉमन होता। अब यहाँ एक्स एफ कर दिया और यहाँ पर ये एक्स आई कर दिया, और इस ऊपर कहीं बीइंग लिखा नहीं हुआ। अब ये सेकंड और थर्ड में जो है इज़ कॉमन है, तो इज़ में देखिए सेकंड थर्ड में कॉमन क्या है बी एम, बी एम क्या हो गया इज़। तो अब क्वेश्चन देखिए 55, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज़ फॉर मनी। तो मनी जो है मनी यहाँ फोर्थ में है, अर्न मनी बीइंग बेस्ट। और देखिए अर्न जो है फर्स्ट में भी है 4 में भी है, तो यहाँ पर एम आई और एम आई है। एम आई मतलब क्या हो गया अर्नड, यहाँ पर कट गया, ठीक है। अब 2 बच गए इसमें जेड टी एंड क्यू एस, तो इन दोनों में से एक हो सकता है, तो इसमें ए आंसर होना चाहिए इधर, क्योंकि डेटा पूरा नहीं है ना। और क्यू एस जो है ऊपर कहीं लिखा नहीं हुआ किसी में भी, तो कॉमन कैसे बनाएंगे उसको। अर्न देखिए सेकंड में भी है, तो एम आई अर्न हो गया। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 56, इन द गिवन कोड वेरी एसेंशियल कैन बी रिटन एज। देखिए वेरी एसेंशियल, देखिए यहाँ से हम ले सकते हैं एसेंशियल क्या बच गया यहाँ पर एच आर, ठीक है। और वेरी वेल क्या है, वेल का क्या था ला। इसका होना चाहिए एच आर फो, मतलब फो पहले आया तो है ना, तो वो तो कोई बात नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। बी वुड बी द आंसर। नेक्स्ट 57, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट्स ला डी सी एम आई। तो ला था वेल, डी सी था क्या ऑलवेज, एम आई क्या था अर्नड, अर्नड ऑलवेज वेल, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 58,
इन सर्टेन कोड ऑडिट इज रिटन एज $2*67, फिर PUB इज रिटन एज $8*5. हाउ इज BUT रिटन इन दैट कोड? अब PUB और ऑडिट में क्या कॉमन है? U स्टार आ गया, तो स्टार तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ऑडिट से लिया T और यहाँ से लिया B, ठीक है। तो B जो है इसमें है 5 मतलब 5 स्टार। अब क्या आना चाहिए यहाँ पर? T $, $5. B is the answer. Next 59. How many meaningful words can be formed with the best letters of IEST using each letter only once in each word? बताओ अब क्वेश्चन का आंसर दो। तो TIES ties, SITE sight और ITS its, बट यहाँ पर ई नहीं आएगा इसमें। अब यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, तो इसको मिस नहीं कर सकते, तो 2 आंसर होना चाहिए इसमें। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 60. टी सेज एम इज सिटिंग अपोजिट टू मी। टी के ऑपोजिट कौन बैठ गया? एम। नाउ लेट्स से मेक रेक्टेंगुलर टेबल पर फर्स्ट, ठीक है। अब टी सेज एम इज सिटिंग अपोजिट टू मी, मान लो ये टी है यहाँ पे और एम यहाँ आ गया। फिर आर ने बोला, आर क्या कहता है कि एन इज सिटिंग टूवर्ड्स राइट ऑफ टी। टी का राइट, अब ये फेसिंग इधर है तो टी का राइट कौन सा होगा? ये वाला। यहाँ पर आ गया एन, ठीक है। इफ बोथ ऑफ देम आर राइट दे आर सिटिंग एट द 4 साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल। हु इज सिटिंग टूवर्ड्स राइट ऑफ एन? एन के राइट में कौन हुआ? फिर यहाँ पर आना चाहिए राइट अब एन का। आर बिकॉज टी तो यहाँ आ गया। अब 4 कोनों में बैठे हैं अगर ये, तो अगर n यहाँ पर है तो n के राइट में फिर m होना चाहिए। फिर अगर r यहाँ आ जाएगा तो C इज द आंसर। नेक्स्ट 61. हाउ इज निशा रिलेटेड टू नंदा? निशाज मदर इज सिस्टर ऑफ नंदाज फादर। नंदा का जो फादर है उसकी जो सिस्टर है वो कौन है? निशा की मदर है, निशा, ठीक है। मतलब ये दोनों कौन हो गए? कज़न सिस्टर्स हो गई, ठीक है जी। नंदा इज डॉटर ऑफ निशाज ग्रैंड फादर्स ओनली सन। निशा का जो ग्रैंड फादर था, अब ये नहीं बताया कि कौन सा, नाना या दादा, ग्रैंड फादर है। उनका जो ओनली बेटा मतलब फादर एन, फादर है जो उसकी बेटी है नंदा। द डेटा इन द स्टेटमेंट 2 इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। या फिर डेटा इन स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, बोथ स्टेटमेंट नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। नहीं, 1 भी पूरा था, 2 भी पूरा है, बी इसमें आंसर होना चाहिए। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 62. राजेश करेक्टली रिमेंबर्स दैट हिज फ्रेंड संजय स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर अप्रैल बट बिफोर सितंबर, ठीक है। अप्रैल के बाद और सितंबर के बीच में, ठीक है जी। विनोद करेक्टली रिमेंबर्स दैट संजय डिड नॉट हैव जॉब बिफोर मई में जॉब नहीं थी, इसका मतलब अप्रैल मई चले गए, क्या बच गया? जून जुलाई अगस्त। मदन करेक्टली रिमेंबर्स दैट द मंथ संजय स्टार्टेड वर्किंग हैड 30 डेज। 30 डेज किस में आते हैं? जून में आते हैं और सितंबर में आते हैं। इन विच मंथ ऑफ द ईयर संजय डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग, तो जून होना चाहिए इसमें। सितंबर और इन अप्रैल के बीच में है तो जून आ जाएगा 30 डेज का, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट 63. इन ए क्लास ऑफ 40 चिल्ड्रन सौरभ रैंक इज 8th फ्रॉम द टॉप, मतलब टॉप से 8th है, ठीक है जी। ममता इज 5 रैंक बिलो सौरभ, 5 नीचे, तो मतलब ममता क्या होगी? 13th नंबर पर। व्हाट इज ममताज रैंक फ्रॉम दी बॉटम? 40 हैं तो 40 से काउंट कर लो यहाँ पर आप, तो 10 यहाँ पर बने, फिर 20 यहाँ पर और प्लस ये 8 कर देंगे, तो क्या आ गया? 28th। बी इज दी आंसर। अब डायरेक्शन 64 65 में रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन, ठीक है। 64 है क्वेश्चन नंबर। स्टेटमेंट एक के स्मॉलर देन है आई से, आई इज इक्वल टू एन है, एन ग्रेटर देन एन स्मॉलर डी है, फिर डी जो है एल से बड़ा है, एल ई से बड़ा है। कंक्लूजन क्या निकला इसका? ये ऐसे है। फर्स्ट कंक्लूजन है जो के
ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, नो डी इज ग्रेटर देन के, तो ये गलत हो गया। टू जो है टू कंक्लूजन क्या है, एन जो है ई से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है, तो कंक्लूजन टू इज ट्रू, बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 स्टेटमेंट है एच जो बड़ा है ओ से, फिर इक्वल टू सी के से बड़ा है, फिर ई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के है, इज इक्वल टू वाई। अब जो कंक्लूजन वन है ओ वाई से बड़ा है, नहीं ये नहीं बनेगा। सी क्या ई से बड़ा है, नो, सी जो बड़ा किससे है, के से बड़ा है, और ई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है के से, तो सी और ई इक्वल होने चाहिए यहाँ पे, है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि दोनों कंक्लूजन जो है वो गलत हैं, डी इज़ दी आंसर। नेक्स्ट 66, इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट सोवरेन या फिर सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी इज़ दी आंसर, प्रियम्बल में लिखा हुआ है ये तो। नेक्स्ट 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम कंटेन इन आर्टिकल 19 हैज़ नाउ बीन अबोलिश्ड, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये है 19(1) बी। फ्रीडम टू एक्वायर होल्ड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये पहले 19(1) एफ था, जो कि 44th अमेंडमेंट से इसको यहाँ से डिड करके और आर्टिकल 300 ए बना दिया गया। दिस इज नाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। सो अबोलिश कौन सा किया गया, बी, बी इज द आंसर। फिर फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन द एंड पार्ट ऑफ द कंट्री, ये जो है 19(1) ई, और ये कैरी ऑन एनी प्रोफेशन और ट्रेड, और ये है 19(1) जी। Next 68, which one of the following reads literally means you may have the body, habeas corpus सब जानते हैं, A is the answer. Next 69, under which article of the Constitution of India financial emergency is proclaimed? 352 क्या है, national emergency, 356 state emergency, 360 is financial emergency, D is the answer. Next 70, writs can be issued for the enforcement of fundamental rights by president या only high court या फिर supreme court या फिर दोनों, both high court and supreme court, D is the answer. Next 71, the preamble to the Constitution of India provides liberty of thought, belief, expression, faith and worship. Thought, expression, belief है ना, TEB, टैब FW ऐसे आता है ये, तो टैब FW यही है, तो B is the answer. Next 72, Article 1 of the Constitution of India provides India shall be union of states. Yes, यही प्रोवाइड करता है, फेडरल यूनियन नहीं है, क्वेसी फेडरल नो, A is the answer. Next 73, under which article of the Constitution of India the power has been vested upon the Parliament to regulate the right of citizens by law? Article 11, A is the answer. Next is 74, BCCI is a semi-state, a state functionally dominated by the government, not a state under Article 12. D is the answer. किसका नाम था, जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया था कि बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। जी जो नेटवर्क है ना, जी टेलीफिल्म्स, उन्होंने स्टार्ट किया था इंडियन क्रिकेट लीग, उसके बाद बीसीसीआई ने जो है आईपीएल स्टार्ट कर दिया, वो तो कहीं खो गया, वो इन्होंने मोनोपोली क्लेम कर ली उसके ऊपर, अथॉरिटी आईपीएल वालों ने, है ना, स्टार्ट किया किसी और ने, फ़ायदा ले रहा कोई और। 2005 की जजमेंट थी ये। Next 75, nothing in Article 13 shall apply to the amendment of Constitution of India made under Article 368, inserted by 24th Constitutional Amendment या फिर first, 42nd, 44th, ये थी 24th Amendment, A is the answer. Next 76, according to Article 15(1) of the Constitution of India, the state shall not discriminate against any citizen on the ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, या फिर religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. A is the answer. Next is 77. Under Article 19(2) of Constitution of India, state can impose reasonable restriction on the interest of sovereignty and integrity of India. तो ये कौन
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था 24th, 1st, 42nd या 16 बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951. बी इज द आंसर. Next 78, the right of privacy is a part of Article 21 held in which case? पी रथीनाम ये कौन सा था? राइट टू डाई वाला केस था. ठीक है. वृत्त नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस कौन सा था? ये केस था जैन हवाला केस. ठीक है, ये 1997 में आया था. 1997 की जजमेंट है, यहाँ पे 88 लिखा हुआ है, 98 होना चाहिए यहाँ पे. ये गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इसमें जो बोला गया था कि राइट ऑफ प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 में ही इसका पार्ट है. ये अटॉर्नी जनरल वर्सेस लक्ष्मा देवी, ये पब्लिक हैंगिंग के खिलाफ जो है पिटीशन थी. तो सी इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 79, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव द राइट टू. देखिए ये मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 26 में, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, बिल्कुल ठीक है. मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, ये बिल्कुल ठीक है. ऑन एंड अक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है. ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 80, फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाइज टू एवरी पर्सन या एवरी सिटीजन? एवरी सिटीजन, बी इज द आंसर. कब आई थी फंडामेंटल ड्यूटी? बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट. नेक्स्ट इज 81, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली विद द पीपल ऑफ इंडिया. बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, ए इज द आंसर. मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 54 में. Next 82, the Attorney General of India shall be appointed by Chief Justice, President, Parliament, Vice President. By the President. B is the answer. Mention किया हुआ है आर्टिकल 76 में. Next 83, for a person to be chosen as a member of Council of States, he must have not less than 35 year of age. मतलब Council of State मतलब राज्यसभा. राज्यसभा के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें एज लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है? 35 ईयर ऑफ एज, या फिर 30 ईयर्स होना चाहिए, या फिर 25, 21. देखिए आर्टिकल 84 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा के लिए एज कितनी चाहिए? 30 ईयर्स, और लोकसभा के लिए 25 ईयर्स. तो इसमें बी आंसर रहेगा. नेक्स्ट 84, हु शैल बी इंटर आलिया द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स? राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ए इज द आंसर. मेंशन किया हुआ ये आर्टिकल 89 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट 85, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, कौन सी पावर है ये? इन कनेक्शन टू फॉरेन मैटर या फिर वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट. ये ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट होता है जब कोई भी पार्लियामेंट सेशन नहीं हो. तो मेंशन किया हुआ आर्टिकल 123 में. नेक्स्ट 86, the age of judge of Supreme Court shall be determined by the Supreme Court, Chief Justice along with 3 senior most judges, या फिर Parliament by law. ये होता है Parliament by law. C is the answer. कहाँ मेंशन किया हुआ है ये? इन आर्टिकल 124 क्लॉज 2A में. This is 87. An appeal to Supreme Court in civil matters lie if the High Court certifies that the case involves a substantial question of general importance, या फिर the said question need to be decided by the Supreme Court. Both A and B. D is the answer mentioned in Article 137. Next 89. When the Parliament can legislate with respect to a matter in the state list, in case a state is incompetent, या फिर in case of national interest, applying doctrine of Pith and substance after proclamation of emergency. In case of national interest, B is the answer. कहाँ मेंशन किया हुआ है ये? In article 249 of constitution. Next 90, the law relating to defection contains in कौन schedule में है? देखिए 5th schedule क्या कहता है? Provision as to administration and control of schedule areas and scheduled tribes. ठीक है. 9th schedule क्या कहता है? Validation of certain acts. And 10th क्या है? Disqualification on ground of defection. तो C is the answer. Next is 91. A decree can be preliminary or final, either preliminary or final. C is the answer mentioned in section 2.2 of the CPC.
This is 92. Whom the following is not a legal representative? A creditor, an intermeddler, a trespasser. क्रेडिटर और ट्रेसपासर जो है वो एलआर नहीं हो सकते, तो डी इसमें आंसर रहेगा। एलआर की डेफिनेशन कहाँ प्रोवाइड की गई है? इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में इन सीपीसी। उसमें लिखा हुआ है ना, इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज। बी जो है एलआर है। Next 93, the code of small causes under section 3 CPC is subordinate to High Court, District Court. Both C is the answer. Next is 94. Under section 10 of CPC, suit is liable to be dismissed या stayed. क्या होता है? Stay होता है। B is the answer. क्या बोलते हैं इसको? Res sub judice. एक मैटर, सेम कोज ऑफ एक्शन, सेम पार्टीज, है ना, सेम इशू जो है वो सब जुडाइस है। तो जो सेम अगर मैटर दोबारा से आया बिटवीन द सेम पार्टीज, तो क्या होगा? स्टे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 95, वैलिडिटी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी इन अ सिविल कोर्ट ओनली, या फिर क्रिमिनल कोर्ट, या फिर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट, नीदर इन सिविल नॉर इन क्रिमिनल। सिविल कोर्ट में करेंगे। ए इज द आंसर। इसके लिए देखिए आप सेक्शन 13 एंड 14। Next 96, X residing in Delhi publishes statement defamatory to Y in Kolkata. Y can sue X at Delhi or Kolkata, either in Delhi or Kolkata. C is the answer. कहाँ मेंशन किया हुआ है ये? In section 19. This is illustration A in CPC. Next 97, in every plaint under section 26 CPC, facts should be proved by oral evidence, document, oral as well documentary evidence, या फिर एफिडेविट। बाय एफिडेविट, डी इज द आंसर। सेक्शन 26 बता ही दिया। नेक्स्ट 98, प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों ही होती हैं। सी इज द आंसर। ऑर्डर 6 रूल 1 में मेंशन किया हुआ है। ये सारे रिपीट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट 99, सेट ऑफ इज अ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, या फिर रेसिप्रोकल असर्टेनमेंट ऑफ डेट्स बिटवीन द पार्टीज। डेट्स का होता है, तो बी इसमें आंसर रहेगा। ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर 8 रूल 6। नेक्स्ट 100, रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री इंक्लूड्स अप्लीकेशन ऑफ सेटिंग असाइड एक्स पार्टी, यस इन ऑर्डर 9 रूल 13। अपील कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 101, रूल ऑफ दम दुपट इज अ रूल ऑफ रेस जुडिकाटा, या फिर एविडेंस रिलेटिंग टू कॉस्ट, या फिर इंटर। इट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट। डी इज द आंसर, रिलेटेड टू सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी। ये जो है एमपी एफ यूपी में जो है आ चुका है क्वेश्चन पहले, तो सारे क्वेश्चन इधर उधर से ले लेते हैं। ये नए क्वेश्चन थोड़ी बनाते हैं। नए क्वेश्चन तो जैसे दिल्ली हो गया, आजकल हरियाणा में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लग गए हैं, ठीक है ना। JNK का अगर आप पेपर देखेंगे, दैट इज ऑल्सो क्वालिटी पेपर। नेक्स्ट इज 102, ए डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी सेंड टू अ फॉरेन कोर्ट। बिल्कुल ठीक है। कोर्ट आउटसाइड इंडिया एस्टेब्लिश बाय अथॉरिटी ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कर सकते हैं। तो इसमें ए आंसर रहेगा। इसके लिए देखिए आप सेक्शन 45 ऑफ CPC। Next is 103, application of execution of a decree is to be made to the district court, high court, a court which passed the decree. Which passed the decree? C is the answer. Section 38 CPC. Next 104, precept is an execution of a decree, transfer of decree, and order to another competent court to attach the property of judgment debtor. C is the answer. Section है ये 46 of CPC. Next 105, section 56 of CPC prohibits arrest, detention in execution of a decree of a minor boy, minor girl, a woman. A woman, आप woman को arrest नहीं कर सकते in execution of a money decree, ठीक है ना। C is the answer. Next 106, private alienation of property by judgment debtor after attachment under section 64 of CPC is void. B is the answer. लिखा ही हुआ है वहाँ पे। नेक्स्ट 107, ए गार्निशी इज अ जजमेंट डेटर या जजमेंट डेटर्स डेटर, मतलब जिसके खिलाफ डिक्री आई है
उसने किसी से पैसे लेने हैं, मतलब उसका कोई डेटर है, तो बी इज़ दी आंसर। नेक्स्ट 108, और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन ऑर्डर 21 एंड रूल 46। ए में है नोटिस टू गार्निशी एंड बी में है ऑर्डर टू गार्निशी। नेक्स्ट 108, कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन कैन बी इशूड एक्स पार्टे या फिर इन प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टीज, ओनली आफ्टर हियरिंग बोथ पार्टीज, ओनली आफ्टर हियरिंग बोथ पार्टीज। सी इज द आंसर। सेशन है देखिए इसके लिए 75 एंड ऑर्डर कौन सा है? 26 फॉर कमीशंस। नेक्स्ट 109, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अटैच बिफोर जजमेंट। देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये ऑप्शन थोड़ा ठीक नहीं बनाया। कैसे? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है ना, उसमें लिखा हुआ है कि सच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो कि उसके लिए नेसेसरी है जीने के लिए, तो वो नहीं ले पाएंगे लाइवलीहुड के लिए। प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो वो तो कर नहीं सकते। तो वैसे तो बहुत हो सकता है, बट मैं कहूँगा कि थोड़ा ठीक नहीं बनाया ऑप्शन यहाँ पे। सेक्शन 64 है, उसमें सेक्शन 1 प्रोवाइजो भी देख लीजिए। 110, रिसीवर इज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट या एजेंट या फिर एजेंट ऑफ डिफेंडेंट? ऑफिसर ऑफ कोर्ट, ए इज द आंसर। ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर इज 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेक्शन 260 ऑफ सीआरपीसी, समरी ट्रायल इज वेस्टेड इन, इसे वेस्ट करती है हाई कोर्ट में या फिर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। देखिए सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास कब जाएगी? जब हाई कोर्ट से वो जो है ऑथोराइज होगा। अदरवाइज किसके पास रहेगा? हमेशा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। सो सी इज द आंसर। अब जो सेक्शन 260 हो गया है, सेक्शन 283 इन बी एन एस एस। 112, एन इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ सस्पेक्टेड ऑफेंडर, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। फिर प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मेड बाय मजिस्ट्रेट, ये होती है इंक्वायरी। इट इज मेड बाय पुलिस ऑफिसर, नो, रॉन्ग है। तो सी इसमें आंसर रहेगा। देखिए पहले जो इंक्वायरी थी वो थी सेक्शन 2G ऑफ सीआरपीसी, अब हो गई है 2K इन BNSS। Next is 113, under which section of CRPC an accused person can himself be a competent witness? 314 है, 315, 313 या फिर 317? ये सेक्शन 315, बी इज द आंसर। अब हो गया है सेक्शन 353 इन BNSS। Next is 114, joint trial of several persons is permissible under सेक्शन 222 में है, 223 या फिर 224 या 221? ये सेक्शन है 223, बी इज द आंसर। अब हो गया ये सेक्शन 246 इन BNSS। Next is 115, which provision of CRPC deals with the power of revision of High Court? 398, 399, 400 या 401? 398 क्या है? पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, ठीक है। 399 क्या है? सेशन जजेस पावर ऑफ रिवीजन, ठीक है। 400 क्या है? पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज। एंड 401 क्या है? हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन। डी इज द आंसर। अब ये सेक्शन हो गया है ये 439, 440, 441 एंड दिस इज 442 इन BNSS। 116, a magistrate shall inquire into the unsoundness of mind of the person against whom the inquiry is being held when the magistrate has reason to believe that such person is unsound mind and consequently incapable of undergoing any punishment या फिर making his defense on conferring with his counsel या फिर to be his own witness। of making his defense, B is the answer। ये सेक्शन है 337। अब हो गया ये 376 इन BNSS। Next is 117, under section dash of CRPC, in certain cases accused has a right to legal aid at the expense of state। Mark the correct answer। कौन सा सेक्शन है ये? 302, 4, 6, 8। दिस इज सेक्शन 304, B is the answer। अब हो गया सेक्शन 341 इन BNSS।
नेक्स्ट 118 विच ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। देखिए 352 आईपीसी। अब देखिए ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है स्केड्यूल से। स्केड्यूल 1 जो है वो देखेंगे आप, ठीक है ना, ऑफ सीआरपीसी, या फिर अब जो है क्या है बीएनएसएस। तो 352 सीआरपीसी का देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है पुराने सेक्शन है आईपीसी के। 352 क्या है, असोल्ट है ये विदाउट प्रोवोकेशन, ठीक है। 353 क्या है, असोल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स डायरेक्टर पब्लिक सर्वेंट पर अगर आपने असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज किया है तो। 354 क्या है, assault and criminal force on women with intent to outrage her modesty। and 365 क्या है, kidnapping and abduction with intent to secretly confine, मतलब किडनैप कर लिया और छुपा के रख दिया। 365 क्या है, cognizable and non bailable। 354 भी cognizable and non bailable है। 350 जो है वो भी cognizable and non bailable है। 352 जो है दैट इज नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, ठीक है। तो इसमें ए आंसर रहेगा। अब जो 352 ये सेक्शन चेंज हो गए हैं ऑब्वियसली। ये 354 जो है ये हो गया है 76 इन बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। 365 जो है वो हो गया है 140 सबसेक्शन 3 इन बीएनएस। 352 हो गया है 131 एंड दिस इज 132 इन भारतीय न्याय संहिता। Actually 119 for an assembly to be unlawful it must have a common object of the kind specified in। common object कहाँ specify किया गया है in section 141, 140, 142 या फिर 144, 141। A is the answer। unlawful assembly की definition भी यही है ना 141 में। A इसमें आंसर रहेगा। अब जो है सेक्शन 141 हो गया है सेक्शन 189 इन भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट 120 the offense of forgery has been defined in section, कहाँ पर defined है, section 462, 63, 64, 67। it is defined section 463। B is the answer। अब हो गया section 336 in BNS भारतीय न्याय संहिता। Next 121 A enters access house through a window, A is guilty of criminal trespass, house trespass या house breaking। ये क्या है, house breaking है। आप कहीं से भी घुसे हों, ठीक है ना, तो क्या होता है वो हाउस ब्रेकिंग। सी इसमें आंसर रहेगा। एंड ये सेक्शन 445 एंड यू कैन सी इलस्ट्रेशन सी इन दैट सेक्शन इन आईपीसी। एंड अब हो गया सेक्शन 330 इलस्ट्रेशन सी इन भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 122 culpable homicide is not a murder if it is committed under intoxication, in anger, without planning, on grave and sudden provocation। D is the answer। This is the first exception, exception 1 in section 300 in IPC। ठीक है। अब ये जो हो गई है सेक्शन 101 एक्सेप्शन 1 इन भारतीय न्याय संहिता। Section 123 harboring on concealing an offender with intention to screening him from legal punishment is an offense under dash section of IPC। सेक्शन 212 A is the answer। A ही है ये। 213 क्या है, अगर आपने कोई ब्राइब ली है, गिफ्ट लिया है, टेकिंग गिफ्ट और ब्राइब टू स्क्रीन एन ऑफेंडर, ठीक है। 214 क्या है, ऑफरिंग गिफ्ट, अगर ऑफर किया वो दूसरे ने लिया नहीं तो वो 214 में आ जाएगा। 215 क्या है, टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी। अब 212 हो गया सेक्शन 249 इन भारतीय न्याय संहिता। और ये 250, 251, 52। Section 124 a person who conspires to overthrow the central government by means of criminal force shall be punished with imprisonment which may extend to। ये सेक्शन है 121A ऑफ आईपीसी। इसमें पनिशमेंट है 10 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। सी आंसर रहेगा इसमें। ऑप्शंस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, 10 year तो 10 year आंसर रहना चाहिए, ठीक है।
अब इन भारतीय न्याय संहिता ये सेक्शन हो गया है सेक्शन 148, ऑलराइट। This is 125. Whoever commits extortion shall be punished with extortion में कितनी punishment है 7 years 3 year 2 year 10 year, it is 3 years, B is the answer। सेक्शन है ये, एक्सटोर्शन का सेक्शन कौन सा है 383, पनिशमेंट है 384 में, ठीक है, इन आईपीसी, ठीक है जी। अब लेकिन बीएनएस में एक्सटोर्शन का सेक्शन है 308 और उसके सब सेक्शन 3 में जो है पनिशमेंट दे दी गई है, अब जो है इसको 7 ईयर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट 126, जनरल एक्सेप्शंस आर कंटेन्ड इन चैप्टर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इट इज चैप्टर 4, बी इज द आंसर इन आईपीसी। बट बीएनएस में जो है जनरल एक्सेप्शंस आ गई है चैप्टर 3 में, ठीक है, और सेक्शन 14 टू 44, ठीक है जी। पहले था 76 से और 106 है ना, अब जो है चेंज हो गया है, अब नया याद करना है। अब नेक्स्ट 127, डेथ कॉज बाय एन एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज विद इज डेल्ट विद अंडर सेक्शन 314, 15, 16 या 317, ये सेक्शन 314, ए इज द आंसर। अब हो गया है सेक्शन 90 इन भारतीय न्याय संहिता और ये 91, 2 एंड 93, ओके। This is 128. Provision for undue influence at election has been made in 171 क्या है, wearing garb, मतलब किसी पब्लिक सर्वेंट की ड्रेस पहन ली, मान लो कोई पुलिस नकली पुलिस बन के चला गया, उसने पुलिस की ड्रेस पहनी हुई है, तो सेक्शन 171 लगता था आईपीसी का, ठीक है ना। अब चेंज हो गया ऑब्वियसली। 171 बी ए क्या है, डेफिनेशन ऑफ ब्राइबरी। 171 सी इज undue influence, C is the answer। और D क्या है, पर्सोनेशन इन इलेक्शन, ठीक है। तो अब हो गए हैं चेंज, अभी 171B क्या हो गया है 170 और ये 171, 172, C इसमें आंसर है। नेक्स्ट 129, ए केस कैन बी कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन बाय मैजिस्ट्रेट अंडर 209 CRPC एट 323 एट 324। 209 में क्या है कमिटल और 323 क्या है व्हेन मैजिस्ट्रेट फाउंड इट टू बी, इट नीड्स टू बी कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन। बोथ ए एंड बी है, डी इज द आंसर। अब चेंज हो गए हैं सेक्शन, 209 हो गया है 232 एंड ये 323 हो गया है 362 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Next 130, wife of A committed suicide after 2 years of her marriage and before her death she was subjected to cruelty and harassment by A and his parents for demand of dowry। A and his parents committed offense, कौन सा 302 मतलब मर्डर का वक्त था, या फिर 304 culpable homicide, 304A causing death by negligence, it is 304B dowry death। So D is the answer। अब डाउरी डेथ आ गया है सेक्शन 80 में इन भारतीय न्याय संहिता। Next is 131, statement made by a party to the proceeding or by an agent to any of such party is confession, evidence, affidavit, admission। It is called as admission। D is the answer। देखिए एडमिशन की जो डेफिनेशन है वो दी गई थी सेक्शन 17 में, एंड ये जो स्टेटमेंट है ये है सेक्शन 18 की स्टेटमेंट इन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अब चेंज हो गया सेक्शन, तो ये 17 हो गया है 15 और ये हो गया है 16 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 132, इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द अक्यूज लीड टू डिस्कवरी ऑफ वेपन यूज्ड इज एडमिसिबल इन एविडेंस। सेक्शन 27 है, सब जानते हैं, सी इज द आंसर, डिस्कवरी इन 27। अब हो गया है सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 का प्रोवाइजो इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 133, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज क्या है, परफेक्ट, रियल, कंक्लूसिव या सेल्डम कंक्लूसिव। हमेशा कंक्लूसिव नहीं होता, इसका मतलब क्या है सेल्डम कंक्लूसिव, कभी कभी हो सकता है। डी इज द आंसर। और
सेक्शन कौन सा था पहले? था 45 इन एविडेंस एक्ट, अब हो गया 39 इन BSA। नेक्स्ट 134, ओरल एविडेंस मस्ट बी स्पेसिफिक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नॉन स्पेसिफिक, मस्ट बी डायरेक्ट। बी इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 60 ऑफ एविडेंस एक्ट। अब हो गया सेक्शन 55 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 135, वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज, क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्कमस्टेंशियल। इट इज प्राइमरी एविडेंस, ए इज द आंसर। और ये प्राइमरी एविडेंस में ही मेंशन किया गया है, जो कि ये सेक्शन 62 ऑफ एविडेंस एक्ट में, बट अब चेंज हो गया है, अब आ गया है ये सेक्शन 57 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 136, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल इज, क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ओरल या रियल? दैट इज सेकेंडरी एविडेंस। बी इज द आंसर। प्राइमरी बता ही दिया कहाँ पर है, सेक्शन 62 में, एंड दिस इज 63। अब हो गया है सेक्शन 57 एंड 58 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 137, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज बीन प्रोवाइडेड इन 65A, 65B, 66 या 67? इट इज इन 65B। बी इज द आंसर। अब हो गया सेक्शन 63 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ही आ चुके हैं सेम क्वेश्चंस। Next 138, A has been in possession of a landed property for a long time. He produces from his custody deeds relating to documents showing his titles to it. The custody is void, है, invalid, proper, improper. तो डॉक्यूमेंट दे रहा है तो वैलिड ही रहेगा फिर। तो कस्टडी क्या रहेगी? डॉक्यूमेंट उसके पास ही है तो प्रॉपर रहेगी। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 139, a person summoned to produce a document can be examined, if it cannot be cross examined can be cross examined, या फिर cannot be cross examined unless and until he is called as a witness. D is the answer। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 139 ऑफ एविडेंस एक्ट। अब हो गया सेक्शन 144 इन BSA। नेक्स्ट इज 140, एग्जामिनेशन ऑफ एन अटेस्टिंग विटनेस is necessary even where its execution has been admitted by the person by whom it proposed to have been executed। मॉर्गेज में, गिफ्ट में, विल में या सेल में? विल के केस में होता है कि हमेशा एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस रिक्वायर होता है। ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 68 ऑफ एविडेंस एक्ट में। अब हो गया सेक्शन 67 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Next 141, section dash of Indian evidence speaks of presumption as to power of attorney। power of attorney के बारे में कहाँ प्रोवाइड किया गया है? 83, 84, 85, 86। इन 85, अगर देखिए उस टाइम में आंसर था 85, अगर आज के टाइम पे आया तो होगा 84, बिकॉज BSA में सेक्शन ही 84 हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। Next 142, presumption as to electronic message is provided in 87, 88, 88A या फिर 89। अब देखिए प्रिजम्पशन किसकी है? इलेक्ट्रॉनिक मैसेज की। मतलब अमेंडमेंट से आया है तो अमेंडमेंट क्या होती है? ए, जो मतलब जनरली जो है प्रिजम्पशंस में कभी देखा हो तो, ठीक है। सी इसमें आंसर है। अब हो गया है ये सेक्शन 90 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Next 143, section 167 of Indian Evidence Act applies to civil cases, criminal cases, tax matter, both A and B. Both A and B, D is the answer। अब हो गया है सेक्शन 169 इन BSA। Next 144, leading question may be asked in re-examination cross या फिर examination chief। इन क्रॉस एग्जामिनेशन B is the answer। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये वाला। तो कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 143 ऑफ एविडेंस एक्ट। अब जो है सारे लीडिंग क्वेश्चन वाले सेक्शन जितने भी थे ये एक में सेक्शन में कर दिए हैं इन सेक्शन 146 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 145, ए पार्टी मे क्रॉस एग्जामिन हिज ओन विटनेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 154, 155, 156 या 157। हॉस्टाइल विटनेस कहाँ होता है? 154 में। ए इज द आंसर।
अगर आज के टाइम में आएगा तो होगा सेक्शन 157 बिकॉज बीएसए में चेंज हो गया है। नेक्स्ट 146 एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स दोज कन्फेशंस मेड टू मैजिस्ट्रेट या फिर टू पुलिस ऑफिसर टू सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, दोज कन्फेशन विच आर मेड टू अ पर्सन हु आर नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ टू रिकॉर्ड कन्फेशन। डी इज द आंसर। तो मैजिस्ट्रेट या पुलिस के अलावा किसी को भी दिया गया कन्फेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। डी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 147 द नंबर ऑफ विटनेस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट एट लीस्ट 5 2 6, नो पर्टिकुलर नंबर, एक विटनेस भी काफ़ी है। डी इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 134 इन एविडेंस एक्ट। अब हो गया ये सेक्शन 139 in BSA. Next is 148. Presumption of law is based on logic, provisions of law, या फिर fact या फिर evidence. Provisions of law. B is the answer. बहुत सारी presumptions of law लिखी हुई है ना एविडेंस एक्ट में। अभी हमने करी है ऊपर पावर ऑफ अटॉर्नी की, मैप्स एंड चार्ट्स प्लान्स की पहले भी आई है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज वाली, ऑल दैट। नेक्स्ट 149 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद रेलेवेंसी ऑफ मोटिव प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। मैं इसको बोलता हूँ PCM, प्रिपरेशन कंडक्ट एंड मोटिव, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। पहले था ये सेक्शन, उस टाइम पे था आंसर C, सेक्शन 8। अगर आज आएगा तो सेक्शन होगा ये 6 बिकॉज BSA सेक्शन 6 हो गया है। नेक्स्ट 150 प्ली ऑफ एलिबा इज रिकॉग्नाइज्ड इन सेक्शन 6 10 11 12। इट इज इन सेक्शन 11 एज पर एविडेंस एक्ट। ठीक है, अगर आज के टाइम में आएगा सेक्शन 9 होगा BSA। नेक्स्ट 151 इफ टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर इज फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बाय द स्पेसिफाइड टाइम, द कॉन्ट्रैक्ट becomes unenforceable या फिर voidable at the option of the promisee या फिर become void valid। B is the answer। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 55 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 152 एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंसेज क्या होता है? कॉन्टिजेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वेजरिंग या यूनिलेटरल एग्रीमेंट। ये होता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट में ऐसा हुआ तो कंपनी आपको पैसे देगी, है ना। तो ए इज द आंसर। ऐसी 153 द प्रिंसिपल दैट नो वन शैल बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर इज नोन एज, क्या होता है? क्वांटम मैरियट, न्यूटन पैक्टिम, क्वेज़ी कॉन्ट्रैक्ट। क्वांटम मैरियट क्या होता है? क्वांटम मीन्स द अमाउंट, जितना काम हुआ है उतना आपने पे करना है। क्वांटम एज पर दी मेरिट्स, मतलब जितना काम हो गया उतना आपने पे करना है। न्यूटन पैक्ट मतलब पैक्ट विदाउट, पैक्ट मतलब एग्रीमेंट विदाउट मनी, विदाउट कंसिडरेशन। क्वेज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स एक्ट विच रिजेंबल्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए जो ये प्रिंसिपल है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ठीक है, देखिए ये पार्ट है क्वेज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स का, बट मैं कहूँ कि ये ऑप्शन जो है ठीक नहीं बनाए, प्रिंसिपल कुछ और पूछ लिया विच इज़ अ पार्ट ऑफ क्वेज़ी कॉन्ट्रैक्ट। सो मैं कहूँगा कि नन ऑफ दी अबव इसमें आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, क्वेज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स तो ये नहीं होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ क्वेज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स इन बिटवीन बट नॉट प्रॉपर क्वेज़ी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आई वुड से डी वुड बी द आंसर। Next 154 A promised to paint a picture of B on a certain day at certain price. A dies before the date the contract is can be enforced by A's representatives or B only, if it can be enforced either by the A's representatives or by B, cannot be enforced either by the A's representatives or by B। D is the answer because ये क्या है? ये पर्सनल वॉल्यूशन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसमें पर्सनल क्वालिफिकेशन चाहिए। किसकी? पर्सन है जो आर्टिस्ट है ना, ये पर्सनल क्वालिफिकेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये एनफोर्स नहीं हो सकते। डी इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये है सेक्शन 37 एंड दिस इज इलस्ट्रेशन बी इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 155 द डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं ये इसको? गुड्स। देखिए डिलीवरी किसकी है? गुड्स की। दैट इज अ प्लेज। सी इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 172।
Next 156, the delivery of goods by one person to another for some specific purpose and time is known as, तो क्या होता है बेलमेंट। सेक्शन 148 में लिखा ही हुआ है डिलीवर गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। Next is 157. A without B's authority to let out B's flat to C. Afterward, B accepts rent of flat from C. It is an agency by holding out, ratification या फिर necessity estoppel. By ratification, ratification कर दिया ये तो B इसमें आंसर रहेगा। इसके लिए देख सकते हैं आप सेक्शन 196 एंड 197 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहाँ पर इलस्ट्रेशंस भी हैं सिमिलर। Next 158, where both the parties to an agreement are under mistake as to matter of fact, which is essential to the agreement. The agreement is क्या होता है वो void. B is the answer. Essential नहीं लिखा होता तो फिर वो void नहीं होता। सेक्शन है ये सेक्शन 20 of Contract Act. Next 159, substitution of a new contract for an existing contract between the same parties is known as क्या होता है remission, rescission, alteration, novation. It is a novation. D is the answer. पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म नया आ गया। D is the answer. Novation section है 62 of Contract Act. 160, to convert a proposal into promise, the acceptance must be qualified, unqualified, general, absolute and unqualified. ये है absolute and unqualified. कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। D is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 7 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। Next 161, if the money suit filed within 3 years from a date on which cause of action arises, then the suit does not relate to limitation act, not barred by limitation act, barred या फिर depends on the continuation of delay. No, within 3 year है, recovery of money है, money suit है, तो not barred by limitation, B is the answer. सिंपल है ये तो। अगर आप स्केड्यूल देखेंगे लिमिटेशन एक्ट में तो आर्टिकल 19 से और 26 तक सारे मनी 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 है, वो सब में क्या है 3 इयर्स की लिमिटेशन पीरियड है। नेक्स्ट 162, डिले इन फाइलिंग दिस सूट कैन नॉट बी कंडोन या फिर कैन बी कंडोन अंडर सेक्शन 3 नहीं, कैन बी कंडोन अंडर ऑर्डर 7 रूल 6 ऑफ CPC, यहाँ हो सकता है। कैन बी कंडोन अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, दैट इज ओनली फॉर अपील्स एंड एप्लीकेशंस, तो C इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 163, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट आर मैंडेटरी, ऑप्शनल, डिस्क्रिशनरी, डायरेक्टरी। दे आर मैंडेटरी, A इज द आंसर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, देखिए आगे ना भी बताया था मैंने। क्वेश्चन 164, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू सूट अपील एप्लीकेशन, ऑन अपील एंड एप्लीकेशंस, B इज द आंसर। Next 165, section 6 of limitation act applies to suit, execution of decree, both suits and execution of a decree. None of the above, only for the both. C is the answer. Next 166, section 6 of limitation act does not apply to, अब देखिए 3 को पेपर कर चुके हैं हम, अभी 19 का कर रहे हैं, 20, 21, 23, सब में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। डज नॉट अप्लाई टू, इडियट पे है, इनसेन पे है, माइनर पे है, इंसॉल्वेंट पर नहीं है, तो C इज द आंसर। नेक्स्ट 167, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टैंड एक्सटेंडेड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years, B इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया हुआ? सेक्शन 8 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। नेक्स्ट 168, लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन अपील कमेंसेस फ्रॉम डेट ऑफ judgment, signing of decree, application for copy of judgment, availability of copy of judgment. Next 169, the period during which proceedings stand stayed by an injunction or order is excluded under section 13, 14, 15, 16. This is section 15. C is the answer. वो subsection 1 में ही mention किया हुआ है ये 15 में। Next 170, section 17 of limitation act takes within its ambit क्या फ्रॉड्स, मिस्टेक, कंसीलमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव, D इज द आंसर। 171, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग? होना चाहिए यस।
Made before the expiration of period of limitation, yes. Signed by the person concerned, yes. In the handwriting of person concerned, handwriting को जरूरी नहीं, टाइप किया हो, नीचे साइन कर दिया हो, that would be enough. तो डी इसमें आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है ये? 18. उसमें फेमस केस आता है, कौन सा आता है? हम हर बार पढ़ते हैं ये जब प्रिपरेशन करते हैं. तिलक राम वर्सेस नथु. Next is 172. Section 22 of Limitation Act refers to the case of continuing breach of contract successive या फिर both continuing and successive, neither continuing nor successive. Continuing breach है तो 2A is the answer. Next 173. A suit for possession based on the right of previous possession and not on title can be filed within. Right of previous possession की बात कर रहे हैं ये. कितना रहता है? 1 year, 3 years, 6 months या फिर 12 years. कितना रहेगा ये? 12 years का. डी इज दी आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? आर्टिकल 64 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. नेक्स्ट 174. सेक्शन 21 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज ओनली टू सूट, अपील एप्लीकेशन या फिर एग्जीक्यूशन. ऑल ऑफ द अबव. डी इज दी आंसर. 175. The period of limitation for leave to appear and defend is, देखिए समरी सूट्स में होता है ये, है ना. कहाँ कितना है? 10 days, 30 days, 60 and 90 days. It is 10 days. A is the answer. अब ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी हम कर चुके हैं. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन आर्टिकल 118 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. नेक्स्ट 176. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ सूट इज कितना है? 10 days, 30 days, 60 and 90. It is 30 days. B is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन आर्टिकल 122 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. 177. एन एक्नॉलेजमेंट मेयरली कन्फर्म्स लाइबिलिटी या फिर क्रिएट्स अ न्यू कॉज ऑफ एक्शन इफ एक्सटिंग्विश द ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन. ऑल ऑफ द अबव. merely confirms a liability. A is the answer. Section 18 again. 178. A suit for arrears of maintenance can be filed within 1 year, 1 to 3 year, 2 year, 3 years. Arrears of maintenance है 3 years का टाइम पीरियड है. D is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन आर्टिकल 105 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट. 179. The period of limitation for filing a revision is कितना है? 180 days, 90 days, 60 days या फिर 30 days. It is 90 days. B is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन आर्टिकल 131 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. 180. Section 14 of Limitation Act apart from the suit is applicable to appeal, execution, application. अपील और रिवीजन पे भी अप्लाई होता है ये, तो इसमें ए आंसर रहेगा. सेक्शन 14 बता ही दिया है. 181. Spindle relationship is created up to 3 generation inclusive in the line of ascent through mother, up to 5 generation inclusive in the line of ascent of father. तो ए एंड बी बोथ हो गया. रिपीट क्वेश्चन है. डी इज दी आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 3F क्लॉज 1 डेफिनेशन ऑफ स्पिंडल रिलेशनशिप in Hindu Marriage Act. Okay. 182. Pregnancy per allium means pre-marriage pregnancy या फिर pre-marriage unchastity. Pre-marriage pregnancy. A is the answer. Next is 183. Desertion is inchoate and becomes complete only when the deserted spouse files a petition for matrimonial relief या फिर deserting spouse files a petition for matrimonial relief या फिर आफ्टर स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 2 years. 2 years का टाइम पीरियड होना चाहिए. सी इज दी आंसर. तभी तो ग्राउंड बनेगा ना अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. उससे पहले नहीं बनेगा. नेक्स्ट 184. द कंसेप्ट ऑफ फ्री डाइवोर्स इज इम्प्लिसिट इन फॉल्ट थ्योरी, कंसेंट थ्योरी, ब्रेकडाउन थ्योरी, बोथ बी एंड सी. बोथ बी एंड सी. डी इज दी आंसर. Next 185. According to the Shariat, the child will be Muslim if both parents are Muslim. Yes. Even if one parent is Muslim, या फिर even if one parent is a Muslim and child is not brought up as a Hindu. देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं. नॉट ब्रॉट अप मतलब ब्रॉट अप दूसरे रिलीजन में हुआ, एक पेरेंट मुस्लिम है एक हिंदू है, तो फिर
किस में ब्रॉट अप हुआ? मुस्लिम में। तो ए एंड सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, डी इज द आंसर। 186 मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस इज नोन एज फिक, किया है कुरान या हदीथ? ये होता है फिक, ए इज द आंसर। अब कई लोग सोचेंगे कि भाई किया क्यों नहीं है, किया भी तो ये मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस का ही तो पार्ट है। देखिए फिक जो है ना, ओवरऑल जो एक जूरिस्प्रूडेंस है उसको बोलते हैं फिक। किया उसमें से सिर्फ एक पार्ट है, एक मेथोडोलॉजी है इसके अंदर, उसको किया बोलते हैं। ए इसमें आंसर रहेगा। 187 prompt dower which is payable immediately on the marriage taking place is also called as फसीद, मुवज्जल, मर्जल या फिर जिहर? इट इज मुवज्जल, बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188 द मोस्ट प्रॉपर और अप्रूव्ड डाइवोर्स इज, देखिए इन मुस्लिम लॉ, देखिए यहाँ लिखा नहीं हुआ, इन मुस्लिम लॉ जो मोस्ट प्रॉपर होता है वो होता है ए हसन, मतलब इसमें तलाक की प्रोनाउंस जो है ओनली वन टाइम होती है, वंस ओनली, ठीक है। उसके बाद आता है फिर हसन, इसमें कि 3 टाइम्स होती है बिटवीन 3 टू हर पीरियड्स। फिर तलाकुल सुन्ना, ये दोनों जो है पार्ट हैं तलाकुल सुन्ना के। तलाकुल बिद्दत क्या है, जो कि अनअप्रूव्ड फॉर्म है, जो कि बोलते हैं हम ट्रिपल तलाक, है ना, एट वंस, 3 बार तलाक बोल दिया तो मैरिज फिनिश, तो दैट इज तलाकुल बिद्दत। तो बी इसमें फिर आंसर रहेगा। 189 खुला इज अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स बाय सेल, परचेज, एग्रीमेंट, कॉर्शन। ये टाइप ऑफ एग्रीमेंट है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है ना। सी इज द आंसर। इसमें एक और होता है मुबारत, दिस इज ऑल्सो अ डेलीगेटेड तलाक जो वाइफ देती है ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड, खुला भी मुबारक भी। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? मुबारक में क्या है ना, वाइफ हस्बैंड वाइफ जो म्यूचुअल कंसेंट से कर लेते हैं, इसमें कि वाइफ जो है परचेज कर लेती है डाइवोर्स को, कि वो अपना डावर छोड़ देगी और उसको तलाक मिल जाएगा। 190 खयार उल बुलुग इज एन ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, वैलिड मैरिज या फिर फॉर्म ऑफ डाइवोर्स? इट इज ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, ए इज द आंसर। अगर आपकी शादी जो है बिफोर प्यूबर्टी हुई है तो आपको जो है ऑप्शन मिलेगा एट अ टाइम व्हेन यू बिकम एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, कि आप जो है उसको वैलिडेट कर लो या फिर छोड़ दो। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 191 A opens a coaching class in front of B's coaching class. Majority of the students of B shift to A. The situation will be governed by which one of the following principles? Injury without damages या फिर damage without injury? इंजूरिया साइन डैमनम मतलब इंजरी विदाउट डैमेज या फिर डैमेज विदाउट इंजरी? विस मेजर क्या होता है? सुपीरियर फोर्स। वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, वॉलंटरी टेकिंग इंजरी, वॉलंटरी टेकिंग द इंजरी, राइट। इसमें क्या लगे, देखिए क्या उसने कोई क्राइम किया है या फिर कोई रॉन्ग किया है? नो, ही हैड नॉट डन एनी रॉन्ग। सो ये क्या होगा? डैमेज विदाउट एनी इंजरी, मतलब इन डैमेज विदाउट एनी लीगल इंजरी, डैमनम साइन इंजूरिया, बी इज द आंसर। 192 द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाज इनशिएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस? देखिए हर बार बात करते हैं हम इसकी। डोनोमी वर्सेस स्टीवनसन किस पे है? नेग्लिजेंस पे है ना। एशवी वर्सेस वाइट, ये किस पर है? ये है इंजूरिया साइन डैमनम, मतलब इंजरी विदाउट डैमेजेस पर। स्टैनले वर्सेस पॉवल, ये किस पर है? इनएविटेबल एक्सीडेंट पर। विलन वर्सेस फ्लैचर, ये है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, डी इज द आंसर। 193 the maxim exterpi causa non oritur actio means an action cannot arise from a base cause, ये बिल्कुल ठीक है। can arise from base cause, no. every action invites a reaction, no. some actions are liable to tort, no. A is the answer. Next 194 the maxim de minimis non curator lex means law always cannot cure, no. law will held responsible, no. law does not provide remedy for trifles, ये बिल्कुल ठीक है। sometimes in opposition of the act of law, no. C is the answer. ट्रिफल मैटर्स है, उन पे लोग जो है ध्यान नहीं देता है, तो C इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 195 टू टोर्ट्स कंस्टिट्यूटिंग डिफेमेशन आर कौन सी? असोल्ट एंड बैटरी, फिर एब्सोल्यूट लायबिलिटी, लिबल एंड स्लैंडर, नेग्लिजेंस एंड न्यूसेंस। डिफेमेशन में क्या आता है? लिबल एंड स्लैंडर, C is the answer. Next 196 tort is defined as civil wrong for which remedy is an action for
अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, बिल्कुल ठीक है, लिक्विडेटेड नहीं होता, डैमेजेस ऑफ ऑल काइंड। ए इज द आंसर। क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना डैमेजेस को, ये अनलिक्विडिफाइड होती हैं। C197, respondent superior means respondent is superior to plaintiff या master is held superior, servant is not liable, master is vicariously liable। respondent superior का मतलब क्या होता है? master is liable for acts of employees, है ना, master vicariously liable। D is the answer। C198, tort is a violation of right in personam, right in rem। tort क्या होता है? violation of right in rem अगेंस्ट जनरल पब्लिक, होल वर्ल्ड, है ना। बी इसमें आंसर रहेगा। 199, लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया किस में होता है? रेस्क्यू केसेस में, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड या फिर पर्सन टेंडर एज लुनेटिक्स। ये जो है देखिए लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, मतलब ये एक्सेप्शंस क्या क्या हो सकती हैं इसकी, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा, डी इज द आंसर। Next is 200, exemplary damages are awarded when it is considered that an action should never have been brought आना चाहिए यहाँ पे ये। when the purpose of the action is merely to establish a right या फिर when it is necessary to compensate the plaintiff या to punish the defendant and to deter him from similar conduct in future। D is the answer। उसको रोकने के लिए और आगे फ्यूचर में ना करे, इसलिए जो है एग्जाम्पलरी डैमेज जो देते हैं, ठीक है। तो डी इसमें आंसर रहेगा। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of West Bengal Judicial Services 2019। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप जो है टाइम लिख दीजिए, जो भी टाइम आ रहा है वीडियो में वो आप लिख देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। एंड इफ़ इट नेसेसरी हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। वी ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु टेल अस आवर ड्रॉबैक्स एंड मिस्टेक्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो और भी अच्छी लगी हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज जस्ट अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारी वीडियोस को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।